how this signal, how this PWM signal is generated. Just to show this example, I have opened this simulation software. So here let us take a AC circuit, a AC component, and I'm going to change this AC to a square wave DC. Basically जो PWM होता है, it's a square wave DC signal. So I'm just going to select square wave. Let us keep this as default. Everything should be default. Now another thing we used was a resistance. So yesterday we used a resistance which is directly connected to a LED. So let me take an LED. So here I have an LED and I have a resistance. Now I'm just connecting the circuit as I did yesterday. I have connected this to its anode and cathode to ground. Similarly सिग्नल का भी एक पॉइंट ग्राउंडिंग है एंड दूसरा पॉइंट आपके इसमें आपके रेजिस्टेंस के अनदर एंड पे है. नाउ हमारा जो कल रेजिस्टेंस था वो था 470 ओम का. तो लेट मी ड्रॉप डाउन टू 470 ओम्स. 471 इज आल्सो ओके, नो प्रॉब्लम. देन अब हमारा जो सिग्नल था उसका जो पीक एम्पलीट्यूड था वो था 5 वोल्ट्स. सो लेट अस गो एंड सेट इट 5 वोल्ट्स. और जो लो था वो 0 था. करेक्ट. पीरियड अभी हमें इससे इतना नीड नहीं है तो हम इसे नहीं चेंज करेंगे. बट ऑर्डिनो का टाइम पीरियड अलग होता है. उसकी फ्रीक्वेंसी जनरेशन की फ्रीक्वेंसी अलग होती है. बेसिकली पीरियड डिसाइड की कितने फ्रीक्वेंसी में पीडब्ल्यूएम चलेगा. तो अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है, जस्ट गोइंग फॉर फास्टर अप्रोच. सो मैं सब फास्टर जहां अपन थे वहां तक वापस पहुंचा दे रहा हूँ. So first was that resistance. We have to set it 470 ohms. 450 is okay, no problem. And it should be square wave with the peak voltage of 5 volts. Okay, now if I simulate the software and I view this signal, you can see that LED is glowing for some few minutes, a few seconds, then it is switching off. Similarly, if I change some of the parameters in this system, like let's say if I change the width, okay, if I am increasing the width, let's say 100%, you can see the LED is glowing continuously. But LED is not glowing so bright, so I can lower the resistance. As it's a simulation software, there can be some difference with respect to our original practical conditions. So right now you can see in 200 ohms the LED is at full brightness. Okay. Now if I go and change the time period of this signal to some microseconds, like say 200 microseconds, and change the overall time to the actual time of our physical use. Now what happens in Arduino is that Arduino generates this kind of a square wave to generate an analog signal. Just for example, if I decrease this Arduino's PWM cycle, PWM width. Oh, I'm sorry, I'm decreasing the period. Let it be like that. If I go to width and I start decreasing it some percent, like let's say I set it to 80%, the on time and off time of LED changes. Similarly, if I lower this to another value, again the on time and off time has changes. So this small on off change, which is caused due to change in pulse width modulation, makes us believe that the LED was fading, because this oscillation was so fast. This on switching on and off of LED was so fast that from our eyes it was looking like it is an analog system. It was generating some kind of voltage and LED was fading. But in the actual case, it was not fading. It was continuously switching on and off at a very higher frequency, such that our eyes are not able to distinguish between how long the LED was on and off. That is why yes sir. हाँ सर, हिंदी में भी बतलाते जाइएगा. हाँ सर बिल्कुल. देखिए क्या हो रहा था कि कल हम जब ऑर्डिनो से एनालॉग सिग्नल जनरेट कर रहे थे
तो हमें एलईडी का ऐसा इफेक्ट दिख रहा था कि एलईडी फेड हो रही है। तो इन नॉर्मल, अगर किसी नॉर्मल इंसान को हम बताएंगे तो उसके हिसाब से हम ये, वो हमें ये समझाएगा कि इसमें एनालॉग वोल्टेज कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, इसलिए एलईडी की ब्राइटनेस कम हो रही है। बट ऐसा नहीं होता है। ऑर्डिनो के केस में ऑर्डिनो एक ऐसा स्क्वायर वेव जनरेट करता है जिसमें कुछ डेड टाइम होता है, मींस जीरो जीरो सिग्नल्स होते हैं, जिसके कारण हमारा एलईडी कंटिन्यूअसली ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ हो रहा होता है। पर ये इतना फास्ट हो रहा होता है, इसकी फ्रीक्वेंसी इतनी फास्ट होती है कि अपने ह्यूमन आईज के लिए ये एक बंद और ऑन का डिफरेंस हमें नहीं दिख रहा होता, हमें सिर्फ इंटेंसिटी वेरिएशन दिख रही होती है। इसलिए अगर आप उसे फॉर एग्जांपल स्लो मोशन कैमरा से चेक करेंगे तो आपको ऑन ऑफ होता हुआ एलईडी दिखेगा, बट नॉर्मल ह्यूमन आईज में हमें एलईडी को फेड होते हुए दिख रहा होता है, इन अदर देन कि वो स्विच ऑन ऑफ होता है। तो दिस इज हाउ Arduino generate its analog signal. This is PWM, pulse width modulation. I am changing the width by changing the duty cycle, and by changing this high time and low time widths, I can set any kind of voltage level. But if I need some kind of system in which I really want to have a digital analog signal only, because I am my circuit or my system won't work on PWM. अगर मुझे ऐसा कोई सिस्टम चाहिए जिसमें पीडब्ल्यूएम इनपुट में ना दे सकूं और मुझे एक्चुअल में एनालॉग सिग्नल ही देना है, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, ये कंपेरेटर चाहिए मुझे, मुझे एक एनालॉग सिग्नल से इसको कंपेयर करना है। तो अगर मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा वेरी करूं, अगर मैं अभी, हम ये एलईडी हटा देते हैं यहाँ से, अगर मैं एक ऑपएम्प लेता हूँ, एक सिंपल कंडीशन से यहाँ पे ऑपएम्प में, कि मैंने ऑपएम्प के इनपुट में कुछ कंडीशन डाली और मैंने आउटपुट पे एक एलईडी लगा दी, एलईडी भी गई है एक रेजिस्टेंस के थ्रू। अगर आप लोगों ने थोड़ा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा होगा तो कंपैरेटर जो एक बेसिक इलेक्ट्रॉनिक का कंपोनेंट है जो ऑप एम्प से बनता है, ये एक सिंपल सा डिवाइस होता है जो एक बेसिकली एक कंपेयर करने वाला डिवाइस होता है। इसके दोनों इनपुट में जो भी कंपेयर सिग्नल आ रहा होता है वो आपस में इसको डिडक्ट करके आउटपुट में बताता है कि कौन सा सिग्नल बड़ा है या कौन सा सिग्नल छोटा है, इन सिंपल केसेस। सो लेट्स से कि मैंने एक वोल्टेज यहाँ पे लिया है और मुझे अब एक एनालॉग सिग्नल जनरेट करके इस एलईडी को तभी ऑन कराना है जब 1 वोल्ट या 2.5, लेट्स से कि ये अराउंड 2 वोल्ट के ऊपर जब होगा तो ये ऑन हो जाना चाहिए। अब अगर मैं ये सर्किट रन करूंगा तो यू कैन सी कि जब यहाँ 5 वोल्ट आता है तो ये आउटपुट ऑन हो जाता है, करेक्ट। बाकी मेरे को तब तक वेट नहीं करना है जब तक स्क्वायर वेव चाहिए। अगर मैं इसको ओवरलैप करके देखूं तो आपको दिख रहा होगा कि ये एग्जैक्टली एच पे ट्रिगर नहीं हो रहा है, ये 2 वोल्ट पे ट्रिगर हो रहा है। इन सच केस कि कंटिन्यूसली ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ हो रहा है तो ये दिस सर्किट विल नॉट वर्क इन रियल लाइफ, बिकॉज मैंने प्रैक्टिकली ये सोचा था कि मेरा ऑर्डिनो जब 2.5 वोल्ट जनरेट करेगा, 2 वोल्ट जनरेट करेगा, तब ये सिस्टम हमेशा ऑन रहना चाहिए। बट अगर मैंने 2 वोल्ट का पीडब्ल्यूएम ऑन किया है तो ये एलईडी कंटिन्यूसली ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ होगी। तो दिस काइंड ऑफ सिस्टम विल नॉट वर्क इन प्रैक्टिकल केस। अगर आपको समझ नहीं आया है तो आपको मैं अभी वापस समझाऊंगा, आप उसको वेट करिए। देखिए अभी यहाँ पे क्या हुआ था, अगर मैंने सिर्फ एक रेजिस्टेंस लगा के इसको जब कनेक्ट किया था तो यहाँ पे मुझे अभी भी स्क्वायर वेव है, यहाँ भी स्क्वायर वेव है। अगर इसको भी हम जनरेट करें तो ये सेम टू सेम ओवरलैपिंग स्क्वायर वेव है, ऑरेंज वाली भी। सो ये करेक्ट नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे मुझे अभी भी स्क्वायर वेव मिल रहा है, तो ये तो हर पल्स में ये 2 वोल्ट के ऊपर चला जाएगा। हर पल्स में 2 वोल्ट के ऊपर जाएगा मतलब हर बार एलईडी ऑन ऑफ होगी, और हर बार एलईडी ऑन ऑफ होगी मतलब ये अभी मेरे को सेम केस दिखेगा जो बिना ऑप एम्प के दिख रहा था या बिना कंपेरेटर के दिख रहा था। तो क्यों ना इस येलो ऑरेंज वाले पार्ट में कैपेसिटर ऐड किया जाए, जो हमने कल परसों पढ़ा था कि एक लो पास फिल्टर कैसे बनाते हैं। अगर मैं यहाँ पे एक लो पास फिल्टर ऐड करता हूँ और मैं अब इसको रन करता हूँ तो आपको दिखेगा कि ऑरेंज सिग्नल कुछ डिफरेंट साइड से एक्ट कर रहा है और इस बार एलईडी ऑन है, कंटिन्यूसली ऑफ नहीं हो रही है। दिस इज बिकॉज जब यहाँ से हम पल्स विड्थ इनपुट इसमें दे रहे हैं स्क्वायर वेव, ये इस लो पास फिल्टर के थ्रू इसको चार्ज कर रहा है कैपेसिटर को, और ड्यू टू दिस कैपेसिटर जब ये चार्जिंग हो रही है तो ये जो ऑरेंज वाला सिग्नल है अब बहुत स्टैटिक सिग्नल है और क्लोज इनफ टू 2 वोल्ट है। अगर मैं इसको यहाँ से हाईलाइटिंग बंद करूं, अगर मैं ग्रीन वाले को बंद करता हूँ अभी कुछ देर के लिए, डिस्कनेक्ट करता हूँ, तो यू कैन सी कि इसकी जो पीक है वो 2 वोल्ट के पास जा रही है ऑरेंज वाले की, जो कि एक्चुअल ऑप एम्प का अभी इनपुट है।
नाउ इफ आई स्लाइटली वेरी एनीथिंग, लाइक अगर मैं रेजिस्टेंस को थोड़ा कम करता हूँ तो मेरा चार्जिंग साइकिल ऊपर हो गया, बट आई विल ट्राई कि मैं रेजिस्टेंस बढ़ाऊं ताकि मेरा वेव जो है वो और स्मूथ आउट हो, और जो मेरे कैपेसिटेंस की वैल्यू है उसको थोड़ा सा घटा दूं, लाइक लेट्स से अराउंड 500 ओम्स, 500 नैनो फराड के आसपास पहुंचने के बाद फिर हमारी वैल्यू वहां पहुंच गई. नाउ इफ आई चेंज माई ड्यूटी साइकिल, नाउ इफ आई गो एंड चेंज माई ड्यूटी साइकिल विथ, यू विल सी दैट कि पल्स विड्थ की जो मॉड्यूलेशन की जो पाथ है ना वो 2 वोल्ट के ऊपर और नीचे जा रही है. तो जैसे ही हमने 2 वोल्ट क्रॉस किया, यू विल सी दैट एलईडी हैज स्विच्ड ऑफ, और जैसे ही हम वापस 2 वोल्ट के अंदर आते हैं, एलईडी हमारी फिर ऑन हो जाएगी. ये देखिए एलईडी ऑन हो गई. सो दिस इज द एज केस कि हम एज पे हैं जहाँ पे एलईडी ऑन ऑफ हो रही है. तो ये केस में हमारा एलईडी ट्रिगर करेगा, पर जैसे ही मैं 2 वोल्ट के नीचे ऑसिलेशंस ले आता हूँ मेरे ऑरेंज वाले, तो हमारी एलईडी फिर ऑन हो जाती है. सो बिफोर एडिंग दिस कैपेसिटर क्या हो रहा था कि जो हमारी एलईडी है वो हर पल्स में ऑन हो रही थी और हर पल्स खत्म होने के बाद ऑफ भी हो रही थी. बट दैट वाज नॉट द एक्चुअल केस कि हमें वो चाहिए था. उससे हमारे आउटपुट में बहुत वेरिएशन आ रहा था, वो बहुत फास्ट स्विचिंग कर रहा था. हमें हमारे कोड में ऐसा चाहिए था कि जब मैं 2 वोल्ट के आसपास अपना एनालॉग सिग्नल लाऊं तो ये जो हमारा एलईडी है वो ऑन हो जाए या ऑफ हो जाए. सो बेसिकली व्हाट आई जनरेटेड हियर, यहाँ पे हमारे पास एक 2 वोल्ट के आसपास का एनालॉग सिग्नल जनरेट हो रहा है. तो अब अगर मैं मेरी ड्यूटी साइकिल को फ्रॉम जीरो, लेट से जीरो ले जाता हूं मैं, अगर वैसे पूरा टेक्निकली जीरो ले जाना पॉसिबल नहीं होता, 10% 1% कुछ रह ही जाता है. तो लेट से अगर मैं 1% ऐड करता हूँ और मैं पूरी कंडीशन को स्टार्टिंग से रन करता हूँ, तो आपको दिखेगा कि मेरा जो वोल्टेज है वो लगभग जीरो के पास है. सिमिलरली अगर मैं इसको इंक्रीज करना चालू होता हूँ और मैं इसको जितना इंक्रीज करता हूँ उतना अपना एनालॉग वोल्टेज लीनियरली बढ़ता है. जो स्लाइट वेरिएशंस आपको बीच बीच में आ रहे हैं, ये स्लाइट वेरिएशन को हटाने का बेस्ट मेथड ये है कि आप आपका आरसी फिल्टर कैलकुलेटेड वे से यूज करें. अभी मैंने रैंडमली वैल्यूज लिए इसलिए थोड़ा सा फ्लक्चुएशन है, फ्लक्चुएशन वहां रहेगा बट मैक्सिमम फ्लक्चुएशन वी कैन कंपनसेट. सर ये दो वेव्स कैसे आ रही हैं, एक पर्पल और एक येलो? यस मैम, ये देखिए आपको दिख रहा है मैंने एक ग्रीन वेव सिलेक्ट करके रखी है और एक मैंने ये वेव सिलेक्ट करके रखी है. रेजिस्टेंस के पहले की वेव है पर्पल, अगर मैं इसको बंद करता हूँ तो पर्पल वेव बंद हो जाएगी, और सेकेंड वेव जो है वो है रेजिस्टेंस के बाद वाली जो यहाँ पे है, अगर मैं इसको बंद करता हूँ तो ऑरेंज सिग्नल बंद हो जाएगी. तो आप इसको मल्टीपल सिग्नल्स इसमें आप व्यू कर सकते हैं, वो ग्रीन हो गई है ऑरेंज की जगह. जैसे अगर मैं कहीं पे भी ये सिग्नल्स व्यू चेक कर सकता हूँ कि क्या आ रहे हैं, क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है. ओके, तो मतलब हमको सिलेक्ट करने पड़ेंगे उतने पॉइंट्स जहां जहां हमको वेवफॉर्म चेक करनी हाँ, होती है. जैसे फॉर एग्जांपल ये 2 वोल्ट चाहिए मुझे, तो ये 2 वोल्ट चेक कर लिया मैंने, अब ये 2 वोल्ट भी आ गया यहाँ पे. Sir, I am asking that Oh, okay. what is the hardware present in the Arduino that means that is responsible for producing the PWM. Okay. Actually, there is a specific block in the Arduino itself, Arduino IC itself, which is called digital to analog converter. It's a DAC. Because the crystal oscillator is used for carrier frequency generation. No, I am actually explaining you. Just let me complete. There is a part called DAC, that is called digital to analog converter. Now, this digital to analog converter work on a timer. Okay. So your controller has multiple timers. It's basically like clocks, like you have clock in your house now. So there are 3 timers, multiple timers there are available. So usually Arduino use timer 0 for PWM generation. So what it does is that every period, that when we were checking this uh, signal generator block, there was a term called period. This period is the timer count, how long does a waveform should work. So every period, this timer resets and tell Arduino to set one of the pin up to high or low, whatever the duty cycle you have set for a specific time. Once it's overflow from that part, it again reset and goes low for next how long the period is remaining. That's how this PWM is generated. So if you want to better understand how to generate PWM, I will suggest you to study about timers, and after you have studied timer, I will suggest you to make your own PWM signal on Arduino using timers only. Don't use digital analog, right?
सर D2A कन्वर्टर के लिए अदर एंड जो है इसका जो ओपैम का प्लस पॉइंट है उस पर अपन हाई पास फिल्टर्स भी लगा सकते हैं। सर ऑप एम्प तो मतलब मैंने बस प्रैक्टिकल पर्पस के लिए अभी आपको दिखाने के लिए यूज किया था। आप चाहे तो आप लगा सकते हैं। एक्चुअल जो सिस्टम है ना ऑर्डिनो यहाँ पे खत्म हो जाता है, बस ये पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन पे ऑर्डिनो हाँ, ओवर हो जाता पल्स है। विड्थ सर, पल्स विड्थ वहाँ पर हाई पास से भी बनाया जा सकता है। हाँ हाँ, हाई पास से भी बनाया जा सकता है, सही बोला आपने सर। बट ओके। लो पास फिल्टर इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा आप लोगों को यूज करना, क्योंकि लो पास फिल्टर में कंपोनेंट इजीली एक्सेसिबल और बहुत इजीली बन जाएगा। अगर आप यहाँ पे हाई पास फिल्टर लगाने जाएंगे तो आपकी वेव फॉर्म उल्टी बनेगी, फिर 0 to 100 इज फ्रॉम 5 वोल्ट टू 0, अपोजिट हो जाएगा ना। जी, फ्रीक्वेंसी भी फर्क पड़ेगा। हाँ, क्योंकि उसमें आप कैपेसिटर्स की वैल्यू चेंज नहीं कर पाएंगे, आपको सिर्फ रेजिस्टेंस की वैल्यू के हिसाब से ही चेंज करना पड़ेगा। अभी इन सच केस यहाँ पे हमारा जो भी केस बना है, जो लो पास फिल्टर मैंने रैंडमली बनाया है, अगर मैं इसमें कुछ और भी वैल्यू सेट करता हूँ या मैं कोई भी वैल्यू लेता हूँ, मेरा केस जो है वो हमेशा सेम रहेगा। फॉर 0% PWM और 0% ड्यूटी साइकिल आई विल हैव 0 वोल्ट। For 5 volt duty cycle, I will have 5 volts. 100% duty cycle, I will have 5 volts. So basically linear condition रहेगा। यहाँ पे मैं 0 to 100% increase करूंगा तो यहाँ मेरा 0 to 5 volt increase होगा। We now understand how fading work. So we are going to move on to our next example. Now we know how to generate PWM signal from our Arduino to generate a analog signal from our Arduino. So next we have to use how to read analog signal. But before going to analog signal, we want to understand how can we show the analog signal we just read। कि हमने अभी जो analog signal जो भी हम read करेंगे हमारे Arduino के थ्रू, हम कैसे उसको ये समझ पाएंगे कि कैसे उसे देख पाएंगे कि हमने जो एनालॉग सिग्नल रीड किया है वो करेक्ट है कि नहीं है। एक मिनट। ओके, सो अगेन आई हैव दिस Arduino with me. And before going further, let me open another example. हम एक दूसरा एग्जाम्पल ऑन करेंगे सबसे पहले, जिसका काम है कम्युनिकेशन करने का। So let me go to communication and let me select serial pass through, or let's say hello world, let's say right now. Just a minute. Let's say serial event is a nice example right now. So this is a simple serial event example. I think this will be a bit still over complicated. Let me take just let's write our own code from the start itself. Now what is serial? As I explained yesterday, जब मैंने कल आपको बताया था, एक प्रोटोकॉल होता है जिसे बोलते हैं हम UART. So UART का काम क्या होता है? UART का काम होता है कम्युनिकेशन करने का। जैसे हमारे माइक्रो कंट्रोलर से हमारा सिस्टम कम्युनिकेट करेगा, सिमिलरली ये कम्युनिकेशन प्रोग्रामिंग के टाइम भी होता है। तो सीरियल के कुछ फंक्शंस होते हैं जो हमें पता होना चाहिए अगर आप सीरियल पे काम करना चाहते हैं तो, जिसमें से सबसे पहले जो है हमें सीरियल, जो सीरियल कम्युनिकेशन का मेन टर्म है, सबसे पहले तो वो राइट करेंगे। तो अगर आपने सीरियल सही लिखा है तो वो ऑरेंज कलर से हाईलाइट होगा, अगर आप कैपिटल एस लिखना भूल गए तो वो ब्लैक कलर से हाईलाइट होगा। तो हमेशा याद रखिए, आपने अगर करेक्ट लिखा होगा तो वो ऑरेंज तो होगा, एटलीस्ट कोई कलर तो आएगा ही अगर वो इंटरनल लाइब्रेरी में होगा। ठीक है, तो सीरियल को सबसे पहले हमें कंट्रोलर को बताना पड़ेगा कि हम सीरियल फंक्शंस का यूज करने वाले हैं कम्युनिकेशन करने के लिए। तो सीरियल को हमको करना पड़ेगा बिगिन, तो हमने सीरियल को कर दिया बिगिन। अब सीरियल को बिगिन करना तो है, पर मैंने कल आपको बताया था कि व्हेन वी आर यूजिंग सीरियल वी हैव टू सेट अ बॉड रेट। तो ये जो बॉड रेट है ये दोनों सिस्टम में सेम होना चाहिए, जो हमारे सिस्टम का होगा वही हमारे ऑर्डिनो का होना चाहिए। एंड द मोस्ट यूनिवर्सल, मोस्ट कॉमन, जो सबसे ज्यादा यूज करने वाला जो बॉड रेट है, इट इज 9600। 9600 is the most common baud rate that everyone use. So now you have started serial by using serial.begin, or you have to start this in void setup, because void setup will run only one time. जब हम जो भी चीज चालू करते हैं, जो भी चीज बिगिन करते हैं, जो हमें कंट्रोलर को एक बार बताना होता है, क्योंकि ये तो एक ही बार बताना है कि सीरियल को चालू करना है हमें 9600 में, तो ये हमें वॉइड सेटअप पे लिखना पड़ेगा क्योंकि ये सिर्फ एक बार रन होता है। पर जो चीज बार बार रन होती है वो हम लिखेंगे किसमें?
वाइड लूप में। तो अब अगर मैं यहाँ आता हूँ और मैं अब सीरियल का यूज करके एक सिंपल सा एक वो लिखता हूँ, सीरियल डॉट प्रिंट एलन। प्रिंट एलन मतलब न्यू लाइन। आप नॉर्मल प्रिंट भी कर सकते हैं, पर फिर वो ये प्रिंट और उस प्रिंट में ये डिफरेंस है। चलिए प्रैक्टिकल वेस में बताएंगे, ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, और इन ब्रैकेट्स के अंदर मैं अब लिखता हूँ यहाँ पे हेलो। ओके, मैंने लिखा है हेलो और आखिरी में एक सेमीकोलन टू टर्मिनेट दिस सेंटेंस। बेसिक सी सी प्लस प्लस स्ट्रक्चर कि आपके एंडिंग में टर्मिनेटर होना चाहिए। एंड अनदर थिंग कि ये मैसेज तो बहुत स्पीड में आएगा, तो क्यों ना इसमें थोड़ा सा डिले डाल दिया जाए कि हर 1 सेकेंड में ये मैसेज आए और फिर वो वेट करे। सो नाउ I have connected my Arduino. Let me just close my Chrome. Okay, so this is my Arduino. Let me just take it over here, and I'm connecting again with the USB. So USB अगर मैं connect करता हूँ, so you can see the green light blinking. Just a minute. So the green light is on. That is means my Arduino is on. Yesterday's code was LED blinking, so that is why our SMD LED is not blinking so bright. And now if I try go to tools and I have to select that board, जो हम last time भी हमने किया था, हमें board select करना है, Arduino का कौन सा board है, कौन सा COM port है, ये सब select करना है। तो ये yesterday वाला ही selected है, तो कोई problem नहीं है, correct है मेरे। अब अगर मैं इस कोड को अपलोड करने जाऊंगा तो ये कोड जो है मुझे बोलेगा सेव करने इस कोड को, क्योंकि ये हमारा एक नया कोड है, ये स्टॉक बेसिक कोड है, स्टार्टिंग से काम किया है हमने इस पे। जस्ट अ मिनट, इसको सेव कर रहा है। इतना स्लो क्यों हो रहा है, क्या बात है? अच्छा ओके, आई एम सो सॉरी। वो एक्चुअली मेरे दूसरे मॉनिटर पे सेव का ऑप्शन आ गया था और मैं यहीं पर ही वेट कर रहा था, वो इधर है। तो जब भी आप इसको अपलोड करने जाएंगे तो ये सेव करने बोलेगा अगर आपने नया कोड लिखा है तो। सो लेट अस राइट इज जस्ट हेलो वर्ल्ड के नाम से इसको सेव करते हैं। हेलो वर्ल्ड के नाम से मैंने इसको सेव कर दिया। सो नाउ माय कोड इज कंपाइलिंग एंड स्टार्टिंग टू अपलोड। अब ये कंपाइल हो रहा है। अगेन वो आप देख सकते हैं, जब वो अपलोड करेगा तो इसकी ऑरेंज एलईडी फ्लैश होगी एग्जैक्टली यहाँ पे। बड़ा टाइम लग रहा है अपलोड होने में, क्या बात है। ठीक है, तो अब मेरा कोड अपलोड होगा। I think I have to restart my Arduino software. It sometimes get buggy. Just a minute. क्योंकि मैंने Arduino निकाल दिया इसलिए। Excuse me, I think need to verify once again this code. I think. Ma'am, actually, whenever you click on upload button, it will automatically verify. Okay, but actually the problem right now is not on hardware itself, because the problem is in my laptop. It's actually running very slow from today. I don't know. Now as you can see, the code is now uploading and it is done. There's some issue with my, I think I got an update yesterday, after that it got slow. So but still sorry for that interruption, but now our code is run and you can see that this time these two LEDs are continuously high.
This is high because it is sending something into our system continuously. These are RX TX LEDs कि if there are some data जो available हो कि इसके serial पे कुछ data available अगर होता है तो this LEDs glow. So if there are some data then this LEDs will glow. So now to check कि हमारे पास ये hello जो है हम communicate कर रहे हैं ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, we can go to serial monitor. This magnifying glass icon on the top right hand side of this system is called serial monitor. So अगर मैं इसमें क्लिक करता हूँ तो ये ओपन करता है एक सीरियल मॉनिटर जो कि ओपन हुआ है यहाँ पे. एक मिनट मैं उसको ले आता हूँ. So this is my serial monitor. पर यहाँ पे आपको as we can see there is no data. तो हमें दिख रहा है यहाँ पे कोई डेटा नहीं आ रहा है पर हमारा ऑर्डिनो डेटा जरूर भेज रहा है. क्यों? इसलिए because our baud rate is not correct. Right now the baud rate is 115200 but we told it to talk on 9600. So if I select 9600 baud rate and you can see our message is here. Now every 1 second our Arduino is sending this hello message to our system, and you can also see the LED at the top of the Arduino. It is glowing whenever the hello is sent. So TX is glowing whenever the hello is sent. So this is how serial communication work in Arduino itself. So till now we now understand how this hello world work. Now there is another example that we can also do is that we can send something from the Arduino itself to control to check on this hardware itself. So there is this another code which is known as serial event. This is an example which is available. Example जो है ये available है. Examples में जाके communication में जाके आप serial event open करेंगे तो आपका ये एक example open होगा. ये examples में कोड है, अलग अलग कुछ चीजें लिखी हुई है, कुछ वेरिएबल्स है जो यहाँ डिफाइन करी गई है. एक स्ट्रिंग वेरिएबल है जिसको हमने स्ट्रिंग से डिफाइन किया है. एक बुलियन है that is bool. Either this variable will be true or this variable will be false. void setup में इन्होंने serial begin का यूज किया है. उसके बाद एक C++ का एक टर्मिनोलॉजी यूज किया है स्ट्रिंग के लिए जिसके कारण इन्हें रिजर्व करके रखी है कुछ स्पेस. भले ही हमारा कोड कितना भी हैफ्टी हो, कितना भी चल रहा हो, ये रिजर्व 200 मींस 200 बाइट की स्पेस इनने इसके लिए हमेशा रिजर्व करके रखी है. नॉनदलेस भले ही वो खाली हो, उसमें कुछ डेटा हो या ना हो, 200 बाइट हमेशा ये खाएगा लेगा. इसके बाद हम नीचे आते हैं तो हमारे पास लूप है जो कंटिन्यूस रन करेगा. तो लूप में एक छोटा सा कोड लिखा है कि अगर एक लॉजिक जो स्ट्रिंग कंप्लीट जो बुलियन था विच इज हियर, अगर ये ट्रू है, इफ ये ट्रू है तो ये वाला पार्ट फॉलो हो, अगर ट्रू नहीं है तो बस लूप ओपन बार बार सर्कुलेट होते रहे. ये कब ओके होता है? ये जब ओके होता है जब हम ये सीरियल इवेंट नाम के एक फंक्शन के अंदर सीरियल का डेटा कॉल करते हैं. तो ज्यादा इन डेप्थ में अभी समझाने से बेटर मैं आपको एक ओवरव्यू दूंगा बस कि इस फंक्शन के अंदर ये होता है कि जब भी सीरियल पे कुछ डाटा अवेलेबल होता है, वाइल सीरियल डॉट अवेलेबल मीन्स जब भी सीरियल पे कुछ डेटा अवेलेबल होता है, जब भी मैंने सिस्टम से कुछ डेटा भेजा है, वो सीरियल को रीड करें, एक वेरिएबल में स्टोर करें और स्ट्रिंग के अंदर जोड़ते जाए, एक के आगे एक, मतलब ABCDEFG जैसे एक के आगे एक स्ट्रिंग के आगे जोड़ दें. जब उसे एंटर मतलब /n कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में इसका मतलब होता है नेक्स्ट लाइन, दैट इज एंटर, जो हम यूजुअली एंटर करते हैं स्पेस के बाद. तो वो जो एंटर का कमांड है वो है /n. तो जैसे इसे /n मिले ये स्ट्रिंग कंप्लीट वेरिएबल को कर देता है ट्रू, और जैसे ये ट्रू हो जाता है वो ये वाले लूप में इसको फॉलो कर देता है. तो जो हमारी इनपुट स्ट्रिंग है वो हमारे सीरियल पे प्रिंट हो जाती है और वापस सब कुछ रीसेट हो जाता है. इनपुट स्ट्रिंग एम्प्टी हो जाती है और स्ट्रिंग कंप्लीट फॉल्स हो जाता है. अब ये थोड़ा समझने में डिफिकल्ट हो रहा होगा अगर आप लैंग्वेज से ज्यादा फेमिलियर नहीं है तो, बट एक बार मैं आपको प्रैक्टिकल वापस समझाऊंगा, अपन वर्किंग के साथ समझेंगे तो थोड़ा इजी रहेगा समझने के लिए. तो मैं ये वाला कोड वापस अपलोड कर देता हूँ इस आर्डिनो के अंदर. अब हमारा नया वाला कोड इसके अंदर जा चुका है.
ठीक है, अब इसको हम साइड बाय साइड लेके चलते हैं। ऑर्डिनो को अभी देखने की इतनी कोई स्पेसिफिक नीड नहीं है, तो मैं ऑर्डिनो हाइड ही कर देता हूँ। आप बस ये दो चीज को देखिए। मान लीजिए अब हमारा कोड रन करता है, तो हमने ये वेरिएबल जो डिफाइन करे थे वो तो डिफाइन हो गए। हमारा सीरियल 9600 में चालू होना था, तो हमारा सीरियल भी 9600 में चालू हो गया है। तो मैं कॉम्पोर्ट ओपन कर लेता हूँ, ये मैंने कॉम्पोर्ट ओपन कर लिया है। अब हम लूप में आते हैं। लूप में कुछ भी फंक्शन नहीं है जब तक ये वेरिएबल जो था, ये बुलियन जो था स्ट्रिंग कंप्लीट, ये हमारा ट्रू नहीं होता है। until unless it is not true, this loop will never work. So when this will get true, ये कब ट्रू होगा? ये ट्रू कब होगा? जब हम सीरियल पे कुछ डेटा देंगे। अगर सीरियल डॉट अवेलेबल होगा तो ये इसको ट्रू कर देगा। तो लेट से आई राइट कि यहाँ पे मैंने लिखा, यहाँ पे लिख देता हूं मैं हेलो। ठीक है, अब मैं हेलो करके जैसे एंटर मारूंगा, यू कैन सी हेलो ही वापस रिटर्न आ गया मुझे। मैंने हेलो भेजा, मुझे ही हेलो वापस आया, इसमें कुछ नया आया नहीं। तो ये क्या हुआ यहाँ पे, ये समझ में नहीं आया है ना। तो ये इसलिए समझ में नहीं आया क्योंकि ये हेलो जो है ये ऑर्डिनो ने वापस भेजा है मुझे। ये मैंने मेरा जो हेलो लिखा था वही हेलो नहीं है, ये रिटर्न किया है ऑर्डिनो ने। अगर इसे और अच्छे से समझना है तो एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं इस कोड को कॉपी करता हूँ और इसी के नीचे मैं एक और चीज लिखता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मेरा नाम आदित्य। ओके, अब प्रिंट एलन का मतलब था कि नेक्स्ट लाइन जो भी डेटा मैं भेजूं, अगर मैं यहाँ पे अगर कुछ और वापस लिखता हूँ, जैसे मैंने ये लिखा, मैंने एंटर मारा तो ये नेक्स्ट लाइन पे आया, बीच में गैप आई। अगर मैं ये एलन यहाँ से हटाता हूँ तो अब कुछ चेंजेस आएंगे। तो वो चेंजेस क्या होंगे हम फिर वो प्रैक्टिकली समझते हैं। ठीक है, अब नया कोड अपलोड हुआ। अब वापस सीरियल अगर ओपन है तो कोई दिक्कत नहीं, आपका वो वापस रिफ्रेश हो जाता है। सो दिस टाइम अगर मैं लिखता हूँ हेलो और मैं इंटर मारता हूँ, तो इस बार ऑर्डिनो ने आदित्य भी साथ में भेजा है जो मैंने बाद में नीचे लिखा था। तो दिस टाइम आई हैव हेलो, और या मैं कुछ भी भेजता हूँ तो उसके नीचे आदित्य लिखा आएगा। अभी तक किसी को कुछ डाउट, एनी डाउट राइट नाउ? एज यू कैन सी, इफ आई सेंड एनीथिंग फ्रॉम माय कंप्यूटर, ऑर्डिनो अटैच एन आदित्य एट द एंड एंड सेंड इट बैक टू मी ऑन माय सीरियल मॉनिटर। So any doubt till now? Anyone have any doubt? Anything they would like to ask? Okay, let's take a quick brief then. Okay, so what happened here is that there is the serial event example in which what happens, this code when dumped into the Arduino, what it does is that whatever command you send on the serial of this Arduino, it sends it back to us. So it repeats us back whatever you have told it. सो बेसिकली इस कोड में ऐसा होता है कि जब हम भी इसको ऑर्डिनो को सीरियल पे कुछ भी कमांड बोलते हैं, हेलो बाय टाटा सी यू, सो ये ही कमांड वापस हमें रिटर्न ऑर्डिनो के थ्रू आ जाती है। सो अगर हियर ये कोड जो है अगर मैं इसे अपलोड करता हूँ और अपलोड करने के बाद सीरियल मॉनिटर अपलोड ओपन करता हूँ, अब अगर मैं यहाँ पे कुछ भी कमांड लिखता हूँ लाइक से हेलो आदित्य ब्ला 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 ब्ला, ठीक है, अब एनीथिंग में कुछ भी लिखता हूँ, अब मैं जैसे ही इस कमांड को सेंड करता हूँ यहाँ से, ये जो है एक सीरियल इवेंट फंक्शन कॉल होता है जो हमेशा ये चेक कर रहा होता है कि सीरियल में कुछ डेटा है क्या, हमारे यूआर्ट में कुछ डेटा है, इज देयर एनी काइंड ऑफ डेटा अवेलेबल ऑन आवर सीरियल, इट इज कंटिन्यूअसली चेकिंग दैट. Once there is some kind of data available on the serial, once I click on send, this data goes to its serial. So if there is any data, अगर वहाँ कोई data है serial पे, so what it does is that it read that data and make a string. So वो serial doesn't work like in a single running method. It read one character at a time. तो जो serial होता है वो एक बार में एक ही character read कर सकता है. तो जब हमारा Arduino ये मैसेज पढ़ेगा तो वो ऐसा नहीं पढ़ेगा कि उसको सारे के सारे वेरिएबल एक साथ मिल गए. Arduino will never read this message at a single string. It will read it like first it will read H, then it will read E, then L, then L, then O and so on. So जो हमारा Arduino होगा वो एक बार में सिर्फ एक ही वेरिएबल पढ़ेगा. सबसे पहले A, फिर स्पेस, फिर D, I, T, Y, A, one after one only. This is how Arduino will read. So
एक एक कैरेक्टर रीड कराना तो ठीक है, पर अगर हमें ये पूरा का पूरा एज इट इज फॉर्म में देखना है तो हमें एक स्ट्रिंग बनानी पड़ेगी ना। स्ट्रिंग इज व्हाट? ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स। तो स्ट्रिंग क्या होता है? ग्रुप ऑफ कैरेक्टर होता है। सो वो ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स हमको सीरियल से मिल रहा है, जो कि हम ये एक कैरेक्टर इन कैर नाम के वेरिएबल में स्टोर कराते हैं एक एक करके, और वो एक एक करके स्ट्रिंग में ऐड कराते जाते हैं। ये प्लस इक्वल टू मतलब ऐड करा रहे हैं स्ट्रिंग के अंदर एक के बाद एक। तो बेसिकली पहले जाएगा एच, फिर अगले बार जाएगा ई, फिर जाएगा एल, फिर जाएगा एल, फिर ओ, फिर नेक्स्ट टाइम स्पेस, नेक्स्ट टाइम ए, फिर देन नेक्स्ट डी एंड सो ऑन। कब तक? जब तक ये स्लैश एंड नहीं रीड करता। स्लैश एंड मतलब होता है एंटर, और स्लैश एंड का मतलब होता है न्यू लाइन। सो ये जो न्यू लाइन और स्लैश एन है, ये ही बताता है कि कब हमारा टर्मिनेट हुआ है स्ट्रक्चर। तो जब मैं यहाँ पे एंटर मारता हूँ तो ये स्लैश एन जाता है। तो एक्स्ट्रा कैरेक्टर जो यहाँ पे हमें दिख नहीं रहा है वो एंटर, एंटर भी एज अ कैरेक्टर जाता है। एंटर विल ऑल्सो गो एज एन कैरेक्टर। सो व्हेन आई विल प्रेस एंटर, you will see that it is sending hello Aditya blah blah blah, and then there's again my name Aditya, which we have programmed it to say every time it prints something. Okay, sir. Thank you so much. Now Okay. it is clear. Okay. So any other doubt? Any other things? सर जैसे हमने इसमें इनपुट दिया है, हम Okay. इनपुट के थ्रू अलग अलग लूप्स को यूज कर सकते हैं। तो सर जैसे कि हमने अपने प्रोग्राम में 3 लूप्स डिफाइन कर दिए, और नहीं। इनपुट के Actually- लिए अगर एक स्पेसिफाइड वर्ड कर दे कि अगर हम ये टाइप करते हैं तो हमारा ये लूप एग्जीक्यूट हो, ऐसा कर सकते हैं हम? नहीं, एक्चुअली ये लूप एक चीज होती है। लूप सिर्फ एक ही बना सकते हैं आप कोड में। देयर कैन बी ओनली वन वॉइड लूप, नो मल्टीपल वॉइड लूप कैन बी मेड। वॉइड लूप इज लाइक मेन फंक्शन। आप इसके अंदर मल्टीपल फंक्शन बना सकते हैं कि अगर ये वाला लॉजिक है तो ये आ जाए, अगर आप कुछ दूसरा आए तो आप दूसरी चीज ले लें, ये पॉसिबल है। बाकी आप मल्टीपल लूप 1, लूप 2, लूप 3 नहीं बना सकते। लूप 1, लूप 2, लूप 3 इज नॉट पॉसिबल। Sir, excuse me, sir. Sir, Yes, UART means sir universal asynchronous synchronous transmitter. यही है सर वो? यस सर जो पढ़ते हैं वही है सर? ये सर ये वही है, सेम चीज है। थैंक यू। ओके, सो लेट्स कैरी ऑन देन। फिर हम अगले स्टेप में चलते हैं। अब हमने डीएसी का यूज, पीडब्ल्यूएम जनरेशन सीख लिया, हमने फेडिंग देखी, हमने ब्लिंकिंग देखी, हमने सीरियल भी देखा। अब जो अनदर मेन पार्ट जो रह गया है वो है हमारा एनालॉग सिग्नल। सो वी हैव सीन all different characteristics of an Arduino: PWM, blinking, fading, serial, etc. But the next part which is remaining is analog signal. So how to read analog signal? So let me just close the serial monitor for you right now, and again we go to files and we go to examples. Okay, in the third category, analog, you have first example, analog in and serial out. So let us open this analog in, serial out. Let me close other ones. Okay, so we now have analog in, serial out. So this is again a small code. There are some constant and some variables we have defined. Like first we have defined constant int. This means that whenever we define something with cons const, it means that this variable can never be changed inside the code. हम जब भी किसी वेरिएबल को const के नाम से इनिशियलाइज करते हैं, जैसे यहाँ पे तो इनिशियलाइज const के नाम से नहीं हुआ, सिर्फ int हुआ है, बट अगर हम const int करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि जो वेरिएबल है ये कोड के अंदर कहीं पे भी चेंज नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता है मींस कि अगर मैं चाहूं तो मैं कहीं पे भी ऐसा नहीं कर सकता कि एनालॉग आउट पिन +1 कर दूं तो ये 10 हो जाए, नॉट पॉसिबल। वहां पे एक एरर क्रिएट होगा, ठीक है। सो दैट इज व्हाई ये डिफाइंड हुआ है कांस्टेंट, क्योंकि हम इसे डिफाइन करना चाहते हैं हमारी पिन, कौन सी पिन हमारी एनालॉग है और कौन सी पिन हमारी डिजिटल आउटपुट पिन है। उसके अलावा कुछ वेरिएबल्स लिए हमने, सेंसर वैल्यू, आउटपुट वैल्यू, जिसको हमने 0 0 डिफाइन किया है। INT मींस इंटीजर, so INT means it's integer, and sensor value and output value right now is defined as 0 at initial start. In void setup you can see that we have done again serial dot begin 9600. So it is setting the baud rate because we are going to communicate on serial. So हम serial पे बात करने वाले हैं, इसलिए इसका baud rate 9600 पे begin हुआ है। अब void loop के अंदर एक नए टाइप का फंक्शन का यूज हो रहा है, एनालॉग रीड। अब एनालॉग रीड का मतलब है कि एनालॉग वैल्यू जो है अवेलेबल पिन नंबर A0 to A6 के A5 के बीच में, उनको रीड करना। तो एनालॉग रीड ऑन विच पिन? एनालॉग इनपुट पिन। और एनालॉग इनपुट पिन हमारी डिफाइन है A0। सो हमारी A0 पे, जैसे आप आर्डिनो पे देख सकते हैं, ये एनालॉग पिन्स की सीरीज होती है यहाँ पे।
तो अगर मैं इसको ऐसे दिखाऊं, आपको आई थिंक मिरर आ रहा होगा, मिरर इमेज पॉसिबल है, आपको आ रही होगी इसमें, बट नॉनदलेस ये जो है ये वाली पार्ट A0 A1 A2 A3 A4 है, ये वाला पॉइंट। सो यहाँ पे हम A0 पे एनालॉग सिग्नल रीड करेंगे, उसकी वैल्यू को हम सेंसर वैल्यू पे स्टोर कराएंगे। एक अनदर फंक्शन मैप, मैप का मायने होता है कि जो भी हमारी वैल्यू है वो जिस भी रेंज में है उस रेंज को कन्वर्ट कर दिया जाए, बेसिकली मैप कर दिया जाए। जैसे हम बोलते हैं ना कि अगर मेरी वैल्यू मान लेते हैं 0 to 500 है, अब मेरे को उसको 0 to 100% पे कन्वर्ट करना है तो मैं उसको मैप कर सकता हूँ। तो हमारी जो सेंसर वैल्यू है, जो एनालॉग सिग्नल इनपुट है, वो 10 बिट का है, तो उसकी वैल्यू जाएगी 0 to 1023, मैक्सिमम वैल्यू 2⁻10। सो ये हमें कन्वर्ट करना है 0 to 255, बिकॉज 255 इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वैल्यू आई कैन गिव एट एज आउटपुट ऑन PWM। सो यहाँ पे क्या होगा, जब हम एनालॉग सिग्नल चेंज करेंगे हमारे एनालॉग इनपुट पे A0 पे, A9 की PWM वैल्यू भी उसके साथ लीनियरली चेंज होगी। जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा। सो वी नो दैट ऑर्डिनो का एनालॉग इनपुट होता है 10 बिट का, और ऑर्डिनो का एनालॉग और PWM आउटपुट होता है 8 बिट का। दैट इज वाई 10 बिट का पावर 2⁻10 इज 1023 एंड 2⁻8 इज 255। उसके बाद हमने एक एनालॉग राइट फंक्शन जो हमने कल पढ़ा था कि कैसे PWM जनरेट करते हैं, वो फंक्शन का यूज करके एनालॉग आउटपुट पे जनरेट किया। और फाइनली हमने सीरियल पे दोनों डेटा बता दिए कि हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, और एक छोटा सा डिले यूज किया है ताकि एकदम स्पीड में ना चले ये कोड। और इसको मैं अब अपलोड करता हूँ। तो अगर आप देखेंगे तो वापस वही एलईडी फ्लैशेस होंगे, यहाँ पे इसकी एलईडी फ्लैश होगी ये वाली, जब कोड अपलोड होगा। ओके, वो कॉम पोर्ट जो था हमारा वो एरर दे रहा है। एक बार फिर से डिस्कनेक्ट करके अगर मैं ऑर्डिनो रिकनेक्ट करता हूँ यूएसबी पे और मैं अपलोड करूंगा तो इजीली अपलोड हो जाना चाहिए। मैक्सिमम प्रॉब्लम जो ऑर्डिनो में अपलोड के टाइम पे आती है, अगर आपका कोड सही है तो वो यूएसबी डिस्कनेक्ट करके रिकनेक्ट करने पे सॉर्ट आउट हो जाती है यूजुअली। ठीक है, तो ये ऑर्डिनो का कोड अपलोड हो रहा है मेरे ऑर्डिनो में, तो ये अपलोड हो गया। अब मैं ओपन करता हूँ सीरियल, तो आपको दिख रहा है कि ये जो सेंसर की वैल्यू है ये 200 300 200 300 कुछ भी आ रही है, रैंडम आ रही है, क्योंकि अभी A0 पे कुछ भी कनेक्टेड नहीं है। तो अगर मैं इसको यहाँ लाऊं, आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू फ्लक्चुएट हो रही है क्योंकि A0 पे कुछ कनेक्टेड नहीं है। तो दिस इज कॉल्ड फ्लोटिंग वैल्यू, कि इसमें अभी फ्लोट वोल्टेज हो रहा है। ये रैंडम वोल्टेजेस है, जैसे हम DSO में देखते हैं या उसमें देखते हैं ना। अगर मैं इसको हाथ से टच करता हूँ तो आपको दिखेगा कि फ्लक्चुएशन और भी बढ़ गए। तो ये मेरी बॉडी के रेडिएशंस वाले जो हमने फर्स्ट क्लास में जो समझा था, ये वो है। ये मेरे सराउंडिंग रेडिएशंस के कारण जो सिग्नल्स आ रहे हैं, ये वो गार्बेज वैल्यू क्रिएट कर रहा है। कभी 0, कभी 1023, कभी फुल, कभी मैक्स, समथिंग। अगर मैं हाथ हटाता हूँ तो फिर नॉर्मल फ्लोटिंग वैल्यू पे आके गाड़ी अटक जाएगी। तो इसको चेक करने के लिए मेरे पास एक दूसरा छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है, ये है पोटेंशियोमीटर। दिस इज कॉल्ड अ वेरिएबल पॉट। तो व्हाट इट डज, इसके ऊपर जो नॉब है ये मैं रोटेट कर सकता हूँ और इससे मैं एक वेरिएबल रेजिस्टेंस ये जैसा एक्ट करता है ये। सो व्हाट आई डू, आई कनेक्ट, देयर आर 3 टर्मिनल्स ऑफ दिस डिवाइस। इसके 3 टर्मिनल होते हैं, वन इज रेड, वन इज ब्लू एंड वन इज ग्रीन। आई हैव अटैच्ड दिस वायर, रेड ब्लू ग्रीन। तो अब ये वायर को मैं रेड को लगाता हूँ 5 वोल्ट्स पे। तो ऑर्डिनो में 5 वोल्ट होता है, मैं इसको 5 वोल्ट्स के अंदर डाल दे रहा हूँ रेड को। देन ब्लू इज द मिडिल टर्मिनल, ऑल्सो नोन एज वाइपर। जो ब्लू है वो बीच वाला टर्मिनल है, उसको हम वाइपर भी बोलते हैं पोटेंशियोमीटर का, क्योंकि वो ही वेरी करता है। तो अब मैं उसको लगाता हूँ A0 पे। एंड द लास्ट इज ग्रीन वन, एंड ग्रीन वाले को मैं लगा देता हूँ ग्राउंड को। तो हमारी अब सारी वैल्यू अटैच हो गई है। ठीक है, अब मैं इसको नीचे रख देता हूँ अभी फिलहाल। सर इसमें पॉट की वैल्यू क्या रखेंगे? सर पॉट की वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हैं, बट 1K to 100K इज गुड इनफ। इस रेंज की उसमें कोई सी भी ले सकता है। सर मैं एक बार मेरा ऑर्डिनो फिर डिस्कनेक्ट करके रिकनेक्ट करता हूँ। ठीक है, अब आपको दिख रहा है कि अब वैल्यू फ्लक्चुएशन कम है, अब 27 28 पे ही वैल्यू फ्लक्चुएट कर रही है। बट अगर मैं ये पॉट का हेड लेता हूँ, थोड़ा सा लूज कनेक्शन है पॉट्स के वायरिंग के बीच में, सो पार्डन मी रिगार्डिंग दैट। ठीक है, अब अगर मैं पॉट की वैल्यू को चेंज करता हूँ,
एक मिनट रुकना, इसमें मैं एक और वायर, एक्स्ट्रा वायर जोड़ लेता हूँ ताकि थोड़ा कनेक्शन और इजी रहे। मेरे पास एक्स्ट्रा फ्लाई लीड्स है जो कल मैंने आपको समझाए थे। सेम कनेक्शन में वापस कर रहा हूँ, कोई कनेक्शंस में डिफरेंस नहीं है। मैं रेड 5 वोल्ट्स टू 5 वोल्ट्स, ग्रीन टू ग्राउंड, and blue to A0. Okay, right now the value is 0. If I turn the potentiometer, it is at max. Now if I lower the value, you will see that value is decreasing. अब मैं जैसे जैसे पॉट को घुमाता हूँ वैसे वैसे जो इसकी वैल्यू है वो डिक्रीज हो रही है। अब 600 पे सेट कर दी है मैंने, अगर मैं इसको और कम करता हूँ तो 400, 300, 200 एंड इट कैन गो अप टू 0। अगर मैं इसको वापस इंक्रीज करता हूँ तो फिर वैल्यू इंक्रीज होना चालू होती है। So this is how analog is reading the voltage level at A0. So simply potentiometer का काम होता है एक वेरिएबल वोल्टेज सोर्स क्रिएट करना। So what we are seeing here is that कि अगर मैं पॉट चेंज कर रहा हूँ तो इसकी वैल्यू यहाँ पे चेंज हो रही है। अब अगर हम कल वाली एलईडी वापस लेते हैं, अगर मैं इसको वापस लगाता हूँ, कल वाली एलईडी को A9 पे वापस, D9 पे वापस लगाता हूँ, okay, so we again now have some kind of system to control the brightness of LED. अगर मैं आपके पास लाता हूँ इधर, एक मिनट। ओके, यू कैन सी दैट अगर मैं इसका पॉट का रोटेशन उसकी वैल्यू कम करता हूँ रोटेट करके, तो एलईडी की ब्राइटनेस कम या ज्यादा हो रही है, आपको दिख रही होगी हल्की हल्की, उसमें इस रेंज के आसपास ज्यादा बेटर दिख रही है। 0 पे पूरी बंद हो गई है और थोड़ा सा बढ़ाता हूँ तो फिर वैल्यू बढ़ गई है। सो दिस इज हैपनिंग बिकॉज मैं पॉट की वैल्यू रोटेट कर रहा हूँ। ये मैं रोटेट कर रहा हूँ तो वो ब्राइटनेस बढ़ रही है, और रोटेट में कम कर रहा हूँ तो वो ब्राइटनेस घट रही है। एंड सेम चीज आप एलईडी में प्रैक्टिकली चेक करते करते आप सीरियल पे भी इसे सेम चीज को देख रहे हैं। सो यू कैन सी दैट व्हेन आई एम डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ पॉट, the LED brightness is going low, and when I am increasing it, the LED brightness is going high. Again, there is a PWM signal on the LED terminal, whereas our potentiometer is analog, so it is we can read it on our serial monitor also using ADCs internally built in IC. So the maximum PWM value is 255. As you can see, the output equals to 255 when our sensor value is 1023. And when I get it to 0, the sensor value is 0, so output value is 255. So while programming, we use this function called map. So, sir, I think someone's mic is on. Can you please check your mic is off, please? Okay, thank you. So now back to the point. So what happened here is that when we checked the analog read signal, we found that the analog read signal maximum value was 1023. So this map function was the function which was converting this 0 to 1023 value of sensor value to 0 to 255. So this is what converting this 0 to 1023 value at sensor input to 0 to 255 at output. So till now, anyone has any doubt? एक्सक्यूज मी सर, ये सर एलईडी टर्मिनल आपने कनेक्ट कहाँ किया था सर? ग्राउंड एलईडी? हाँ, one pin goes to ground and another pin goes to A9. तो अगर मैं यहाँ दिखाऊँ आपको तो ये A9 इधर है, इसके सबसे टॉप वाली पिन ये वाली, और जो ग्राउंड है वो इस साइड है। ठीक, थैंक यू। Sir? Yes, ma'am. So, ये Arduino analog input is 10 bit. How it is? You just told.
Ma'am, actually, there are some different kind of methods to convert an analog signal into digital signal. So the procedure of converting that into digital signal, because our Arduino is digital, na, so it uses a LiDAR circuit and it has 10 bits of resolution. So basically, if I check it again, I just to explain you that for Arduino, it cannot check the voltage directly. It cannot check. It doesn't know what is 5 volt physically. It only knows 0 or 1. So that ADC circuit, what it does is that it convert that 0 volt to 5 volt into a digital bit. So there is 10 bits available for ADC. So it can convert it from around 0 0 0 0 0 up to 10 times, or 1 1 1 1 1 1 for 10 times. So 0 0 0 up to 10 times is 0 volt, and 1 1 1 1 1 up to 10 times is 5 volts for Arduino. So if we convert this 1 1 1 1 10 times into a decimal value, what we get is 1023. So 1023 is none other than decimal value of the highest possible ADC value. If it is still in confusion, you are still in doubt, just to explain it is that in a simple language is that Arduino uses some kind of resolution to convert a voltage level into a digital logic level. So this 1023 is the highest number of that resolution. So if I take a calculator, what has happened to my update? It's getting extremely slow. Okay, never mind. Just I was just explaining that like, see, if we have 0 as an output, right now it is showing 152 and something in the ADC itself. So it doesn't mean that it is 150 millivolts. It is not showing 150 millivolts. It is not showing 160 millivolts. It is showing which is related to 5 volts, relative to 5 volts. So right now it may be around let's say like uh, 1.5 volts or 2.5 volts, something like that. I think I am not able to explain you clearly. Ma'am, do you know about ADCs? Have you studied Yes, about sir. ADCs? Yes, sir. So you must know about ladder circuits and Yes. how ADCs converts. Yes. So basically ADC converts an analog signal says integer that our Arduino can understand from a single analog input is 1023. So in practical purpose for our use, because Arduino is working on 5 volts, so highest voltage 5 volt is stated as 1023, and minimum voltage 0 volt is set as 0. So you can linearly divide, like 5000 millivolts divided by 1023 is close enough to 5 millivolts per unit. So if it is showing 0, it is 0 volt. If it is showing 1, it is 5 millivolts. If it is showing 2, it is showing 10 millivolts, and so on. So right now it is showing 160. So 160 into 5 is your actual voltage, close enough to actual voltage, not exact but close enough to actual voltage. So basically it is just using a ladder circuit. Any other doubts? Okay, so no other doubt, I think. So now our normal Arduino basics are clear. So we can move on to much next level questions and next level solutions. So Aditya sir, are you here? Aditya sir, आप है क्या? Yes. So my colleague Mr. Aditya Dubey sir will explain you much better about Wi-Fi Zigbee protocol. He will show you some practicals. I am also available here, but right now as I am working from my home, so I don't have those hardware available with me. So Mr. Aditya will explain you. I will show you the practical usage of some Wi-Fi or Zigbee and Bluetooth practicals. So I'm just stopping my screen share. So Aditya, sir, carry over to you. Yeah. Thank you, Aditya. So we have an hardware
to interface the modules, different modules. So we have the embedded system platforms like based on 8051 Peak, then ARM, AVR. So such kind of development platforms we have, and we have in common interface modules like this. This is RFID. So this is RFID modules. So this RFID modules, then this is one Bluetooth module, like this Wi-Fi module. So these modules can interface with different embedded development platform with the help of some FRC cable. So like this FRC cable. So here you can see over here this connector is there. So and the connector pins we have taken out from here, and whatever the connections of maybe RFID, maybe Bluetooth, maybe Zigbee. So we have to connect this module with this pin. So actually this pin is connected to microcontroller with the help of this FRC cable. So this FRC cable, and this one is the patch cords. The same way, if I have a Bluetooth module, so Bluetooth module having the connections over here, TX, RX, then some GPIOs we have taken out from this module. We have given one relay interface over here with LED indication. Then two input switches are there. So these two input switches, you can give the input to the this Zigbee, and you can check the events. Based on this, you can perform the experiments. Here on board this, I think you are able to see this USB cable, this USB connection, which having the RX and TX pin. So by using this connector, you can connect this Bluetooth module to your system, that is a computer. Means individually you can perform the experiments of this Bluetooth. So by using this USB connector, so one end should be connected to this port, और दूसरा एंड जो आपका केबल का जो कनेक्ट होगा वो आपका सिस्टम पे कनेक्ट होगा, राइट? और RX and TX पिन है. सो ये RX and TX पिन यू हैव टू शॉर्ट विद दिस RX and TX पिन with the help of patch cords like this. So ये जो मैंने रेड पैच कॉर्ड्स कनेक्ट किया है ये TX से, एंड ओके सर, एक डाउट है हल्का सा सर. ये जो यहाँ पे ब्लूटूथ डिवाइस लगी हुई है, ये HC06 है या 5 है? नहीं, ये BT24 है ये. ओके सर, रिले का यहाँ पे हमने रिले की उसके साथ में रिले इसलिए हमने यहाँ एक ये एक्चुअली एक डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म टाइप का हमने इसको डेवलप किया है. सो यदि आपको ब्लूटूथ के पे कुछ एक्सपेरिमेंट्स करना है इंडिविजुअली, देयर इज इफ यू वांट टू परफॉर्म सम एक्सपेरिमेंट्स individually with the help of this Bluetooth, so there is we have provided one device over here. एक रिले हमने प्रोवाइड किया है कि ताकि जो इसके जो GPIOs हैं, इसके जो ब्लूटूथ के जो GPIOs है जो कि यहाँ पर दिए हुए हैं, ये देखिए इस तरफ या फिर इस तरफ. तो ये जो GPIO को एक्सेस करके आप कोई एक डिवाइस को ऑन ऑफ करना है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अभी यदि मैं इसको सिस्टम से कनेक्ट करता हूँ, ठीक है, सिस्टम से कनेक्ट करता हूँ एंड इट विल वर्क ऑन द 80 कमांड्स. तो 80 कमांड्स को मैं फीड करके इस रिले को मैं ऑपरेट कर सकता हूँ. तो मैं आपको शो करता हूँ, तो बताता हूँ मैं आपको इसमें एक्सपेरिमेंट.
कि Okay, इसको किस sir. तरीके से हम हाँ इसको परफॉर्म कर सकते हैं. एंड अदरवाइज यू कैन कनेक्ट दिस मॉड्यूल टू योर एम्बेडेड प्लेटफॉर्म. एम्बेडेड प्लेटफॉर्म हो सकता है 8051 हो सकता है पीक है, या फिर ऑर्डिनो है. यू कैन सी दिस ऑर्डिनो. So this is a development platform, this Arduino. So you can connect interface this Arduino and Bluetooth with the help of this FRC cable, flat ribbon cable. ठीक है? Okay, sir. Okay. Yeah, okay. Thank you, sir. I think किसी का mic on है, I think so. I think clear है? सर एक्सक्यूज मी Yes, sir. सर. हाँ हाँ. सर ये जो आपने मॉडल्स बताए हैं जिगबी या वाईफाई, ये सब इंडिपेंडेंटली वर्क करते, कंबाइंडली वर्क करते, तो ये इंडिपेंडेंट ये- यूनिट है अपने आप. यस यस, ये दोनों तरीके से वर्क कर सकते हैं. आप इसको यदि इंडिविजुअली आपको वर्क करना है तो आप इसको इंडिविजुअली वर्क कर सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर दिया है FRC सॉरी USB कनेक्टर दिया हुआ है. ठीक है? जी, जी, तो जब जी. आप ये USB कनेक्टर आप वन एंड आप यहाँ पर लगाओगे और दूसरा एंड आपके सिस्टम पे लगाओगे, तो ओके, ओके. हाइपर टर्मिनल के थ्रू, जो कि एक एप्लीकेशन है हाइपर टर्मिनल, जो अभी हमने ऑर्डिनो में सीरियल कॉम्पोर्ट देखा था ना, जो जी, डाटा जी, हमें हाँ. मिल रहा था, तो हाँ, उसी हाँ, जी. तरीके से हम यहाँ से इसको 80 कमांड्स के थ्रू, सर आप एक्सपेरिमेंट बता दीजिए सर, कनेक्ट करके थोड़ा क्लियर हो जाएगा सर. ठीक है, राइट, ओके. थैंक यू सर, थैंक यू. Now I am connecting this Bluetooth module with cable. USB cable. My this USB cable is one end is connected to my PC, and another end is connected to this this module. So before that, going to connect this, just you open the device manager. Yesterday you have seen. So to verify on which COM port it is going to connect it. So now I will connect this USB cable. So see here, another COM port is detected. I think it is 4. Once again I will check out. Yeah, once again I will show you on which COM port is going to connect it. ये मैंने निकाला है, ठीक है, और ये कौन से COM port पे कनेक्ट हो रहा है, ये मैं अभी जैसे ही हम यहाँ इसको कनेक्ट करते हैं तो it's connected to COM 4. So now I'm going to use COM port 4 for its communication. So अब ये सिस्टम का USB मैं ये बता रहा था आपको कि RX एंड TX पिन से मैंने इसको कनेक्ट किया है. ठीक है, अब मैं हाइपर टर्मिनल ओपन करके, जैसे अभी हमने ऑर्डिनो में सीरियल कॉम पोर्ट यूज किया, द सेम वे I can use the hyper terminal, so that whatever the commands I'm going to send from my system to this BT module. Okay, so so this Bluetooth modules works on some 80 commands, so you have to give the 80 commands to run this module. So just a minute. So this hyper terminal I'm going to connect to the particular port.
I will give the any file name, कोई भी एक file name दे रहा हूं मैं. This device is connected to on COM4, and this restore default. If I click on the restore default, so the baud rate automatically this 9600 will set, and okay. Now I can run this module with some AT commands. So let me open AT commands. See here. I will send the AT plus AB and config. So it will reflect me whatever the configurations it has been done with this Bluetooth module. It will give me AT plus AB config. So it will give me the parameters which I have set, or by default it has been set, of this BT module. So here you can see the version, then address, the device name, that Scientific, the pin. So all these, what is the baud rate which is communicating this Bluetooth with these systems, all the parameters it shows. तो जो भी पैरामीटर्स इसमें बाय डिफॉल्ट सेव है इस BT ब्लूटूथ मॉड्यूल में, तो वो आपको इस AT plus AB स्पेस कॉन्फिग इस कमांड से आपको ये पैरामीटर्स आपको ये विजिबल होंगे. सो नाउ इफ आई वांट टू एक्सेस अ GPIO, तो कोई एक GPIO मुझे कोई किसी इस ब्लूटूथ मॉड्यूल का यदि मुझे एक्सेस करना है, तो उस केस में आपको ये जो AT कमांड्स है, बाय यूजिंग AT कमांड्स यू हैव टू एक्सेस द कमांड्स, एक्सेस द GPIO. For that you have to give the commands, that is like this. So there is a steps. To connect these are some experiments. Just a minute. Okay. So suppose I want to change the configuration of this Scientific of this BT to any other name. So I will write AT plus AB config, and which parameters you want to change it, just you have to write this parameter VR03, and you can change the
device name. So I'm going to change the parameters of this device, that is VAR, which is represented by VAR03, that is Scientech. Okay, so I'll write over here. There is some setting, so just a minute, I will this echo. Okay, whatever I am typing over here, it will show over here. So 80 plus AB space config, 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 then space VAR03 equals to, suppose I want to write NVIS. देखिए मैंने कमांड्स, मैंने एक नाम फिर से मैं चेंज करता हूं. नाम चेंज करने के लिए मैंने 80 प्लस AB स्पेस config config, which is variable 03 इक्वल्स टू, कौन सा पैरामीटर आपको चेंज करना है वो पैरामीटर्स आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा. जैसे मुझे नाम चेंज करना है, सो आई हैव टू राइट VAR03. सो जो कि VAR03 आप यहाँ देख पा रहे हो कि ये डिवाइस नेम है. सो आपको डिवाइस नेम क्या रखना है, तो यहाँ पर मैं डिवाइस नेम रख रहा हूँ NVIS, NVIS, एंड एंटर. सो this device name will change. Once again we will cross verify whether it is change or not. So again I will write 80 plus AB space config. तो देखिए अभी मैंने डिवाइस नेम मेरा चेंज हो गया है NVIS. तो इस तरीके से जो पैरामीटर्स है, सपोज जो पिन है, जैसा मेरा जो वेरिएबल नंबर 3 जो है वो मैंने चेंज कर दिया बाय यूजिंग द 80 कमांड. द सेम वे यू कैन चेंज दिस पैरामीटर्स विद द हेल्प ऑफ 80 कमांड्स. ओके, तो जैसे अब इस ब्लूटूथ मॉड्यूल का मेरा पिन है 1 2 3 4. ओके, एंड इफ आई वांट टू चेंज the pin, so again you have to use the same commands, but in this case the variable should be a 0 5. So here I will write 80 plus AB config space, then variable 0 5 equals to 5 6 7 8 and enter. Okay, ये चेंज हो गया है. Then again I will cross verify it. 80 plus AB space config config से मैंने इसको चेक किया. ये देखेंगे आप, मेरा जो पिन है 5 6 7 8 ये चेंज हो गया. तो इस प्रकार से ये सारे पैरामीटर्स में चेंज कर सकता हूं. अब हम शो करेंगे कि इसकी जो GPIOs कैसे सेट करना है. ओके, फॉर एग्जांपल टू कॉन्फ़िगर द GPIOs you have to write this 80 plus AB config 3. Okay, and 3, and then here you have to write O is for output and I is for the input. अब उस GPIOs को आपको एज एन इनपुट बनाना है या फिर आउटपुट बनाना है. इनपुट मतलब आप यू कैन take the connections from it with the help of switches. स्विच को आप इंटरफेस कर सकते हो, या फिर आपको एज एन आउटपुट बनाना है. आउटपुट मतलब उससे कोई डाटा आपको मिलेगा, जैसे हमने LED कनेक्ट किया है ना Arduino में. The same way I can write over here 80 plus AB GPIO config 3 and 0. 0 मतलब O है, it's O means output. So I will make
this GPIO number 3 as an output. So I will write AT plus AB space config space 3 space and O. O means output. Just a minute, I have written the mistake. AT plus AB space CONFIG. Sorry, GPIO config. I have to write the GPIO config. AT plus AB space GPIO, then config CONFIG space 3 space O. Enter. Okay, the configuration has been done. Now, if you want to make it high, so you can write the commands AT plus AB GPIO write 3 1 and press enter. AT plus AB GPIO, then you have to give the space GPIO write WRITE space 3 space 1. I think I have to connect a relay. See, you can see over here, I think so. Are you able to see? Yes, sir. Yeah, so this relay is 1. If I want to make it off, so here I can write AT plus AB space GPIO write space 3 space 0. So see, the relay is off. तो ये AT कमांड से मैंने इसको इंडिविजुअली इसको सिस्टम से रिले ऑन किया और ऑफ किया है ना. तो द सेम वे यू कैन वर्क ऑन दिस वाईफाई मॉड्यूल. The same way you can individually work on this Zigbee module. So Zigbee module needs transmitter and one receiver. So like this one will be the transmitter or receiver. So you need a pair for this one, this Zigbee. And the same way you can use this RFID. Okay. So I think can I show one example with this Arduino if time permits me? सर हाँ सर ये हमने ब्लूटूथ मॉड्यूल यूज किया है इसमें. हाँ एंड सर हमने ये वायर से कनेक्ट किया है. तो सर हाँ. ब्लूटूथ मॉड्यूल का फायदा क्या हुआ जब हम उसको वायरलेस में कनेक्ट कर सकते हैं? तो नहीं, अभी जो मैंने आपको जो बताया है ना, ये बताया है मैंने आपको सिस्टम से कनेक्ट करके. ठीक है. अब जब यदि आपको इसको वायरलेसली आपको यदि ऑपरेट करना है तो आपको इसका जो डिवाइस है
वो आपको कनेक्ट करना पड़ेगा आपके मोबाइल से ना। जैसे मैंने यदि मैं ब्लूटूथ यदि ऑन करता हूं तो जस्ट अ मिनट, आई विल शो यू। So like this, this application you can maybe, are you able to see? देखिए मैंने अभी ये जो ब्लूटूथ मॉड्यूल है ना मेरा ऑन है। अब ये जो ऑन है मेरा, मैं स्कैन कर रहा हूं। Just can you just I'm scanning this Bluetooth module to my phone. Okay, I have changed my this मैंने इसका डिवाइस नेम चेंज किया है, तो मैं once again I'll restart it over here. So I will disconnect this module and again I'll plug in. So maybe I think so now. एक्चुअली ये जो ब्लूटूथ मॉड्यूल है इसको आपको पेयरिंग करना पड़ेगा। So see here, ये मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ। तो बेसिकली एक्चुअली ये जो ब्लूटूथ मॉड्यूल है ये आपको आपके मोबाइल से आप स्कैन कर सकते हो। तो जो भी नाम हमने दिया है इसमें, तो आपका नाम आपके जब मोबाइल में आप ब्लूटूथ ऑन करोगे, सो इट विल शो यू द नेम। जो भी आपने यहाँ नाम रखा है तो उस नाम से आपको आपके मोबाइल में शो करेगा। एंड आफ्टर दैट one application is there in mobile. Just a minute. Application ये ब्लूटूथ टर्मिनल नाम से एक एप्लीकेशन है। सो इस एप्लीकेशन में जो भी आपका डिवाइस है उसको सिलेक्ट करना है एंड देन फ्रॉम दैट यू कैन सेंड द डाटा टू दिस डिवाइस। तो वो कॉन्फ़िगरेशंस उसी फॉर्म में लिखनी होंगी जैसे हमने अभी पीसी में किया था। तो इस पे जैसे अब हम पेयरिंग करना होगा, तो जैसे हम पेयर करेंगे तो पेयरिंग करते समय जैसे कोई भी हम जो दो डिवाइस पेयरिंग करते हैं तो उस समय आपको पासवर्ड देना होगा। तो जो हमने यहाँ पासवर्ड यहाँ डिफाइन किया हुआ है इस डिवाइस में, तो वो पासवर्ड आपको वो पेयरिंग के लिए लगेगा। जैसे आपने पासवर्ड डाल दिया, पेयरिंग हो गई। सो दैट यू कैन विद द हेल्प ऑफ दिस सीरियल टर्मिनल यू कैन ट्रांसफर द डेटा फ्रॉम योर मोबाइल टू दिस दिस मॉड्यूल। नाउ आई विल शो यू द वाईफाई टू कनेक्ट विद दिस ऑडियो बोर्ड। एक्सक्यूज मी सर, हाँ, ये हाइपर टर्मिनल कहाँ पे अवेलेबल होगा? हाइपर टर्मिनल डिवाइस मैनेजर में? नहीं, एक्चुअली हाइपर टर्मिनल ये पहले यदि हम एक्सपी देखते थे या फिर पहले के जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम्स है उसमें बाय डिफॉल्ट आता था कम्युनिकेशन में। बट फ्रॉम विंडोज 7 ऑनवर्ड्स, विंडोज 7 10
तो उसमें हाइपर टर्मिनल नहीं आता, आपको एक्सटर्नली डाउनलोड करना पड़ेगा। तो आप आसानी से गूगल से आप टाइप कीजिए हाइपर टर्मिनल, सो यू विल गेट द हाइपर टर्मिनल। पहले एक्चुअली क्या है, ये माइक्रोसॉफ्ट में बाय डिफॉल्ट आता था विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में, सर ये बट अभी कमांड प्रॉम्प्ट में आएगा क्या ये कमांड प्रॉम्प्ट? नहीं, ये एक्चुअली मैंने अभी जैसे बताया ना आपको, पहले क्या होता था कि ये एक्सपी या फिर पहले के ऑपरेटिंग सिस्टम में यहाँ आप जैसे स्टार्ट करते हो तो एप्लीकेशंस में कम्युनिकेशन में वो बाय डिफॉल्ट दिस हाइपर टर्मिनल्स कम, बट माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया फिर उसको विंडोज जैसे ही 7 और 8 और 10 लॉन्च किया, विंडोज 7, 8, 10, तो उसमें उसने ये एप्लीकेशन हटा दी, तो एक्सटर्नली हमको वो डाउनलोड करना पड़ता है। जैसे हम डाउनलोड करेंगे तो मे बी आपको मैं दिखाता हूँ। तो इस तरीके से ये आपका डाउनलोड होगा, है ना? इस तरीके से ये डाउनलोड होगा, तो ये आपको एप्लीकेशन यहाँ पर रन करनी है। तो ये 3-4 फाइल्स डाउनलोड होगी, और इस एप्लीकेशन को रन करके, जो कि मैंने अभी विंडोज ली है, तो उसमें सेटिंग्स रहती है कि कौन से कॉम्पोर्ट पे सेट करना है आपको। जैसे अभी मैंने जो सेटिंग्स की थी प्रॉपरली, कॉम्पोर्ट आप चेक कर सकते हो डिवाइस मैनेजर से, और कौन से बॉड रेट पे आपको उसको कम्युनिकेट करना है, सो दैट यू कैन सेट विद द हेल्प ऑफ दिस हाइपर टर्मिनल। तो ये आपको एक्सटर्नली डाउनलोड करना पड़ेगा। एक्सक्यूज मी सर, हाँ पुट्टी यूज कर सकते हैं अपन, पुट्टी करके भी हाइपर टर्मिनल हाँ जैसे हाँ, के यस, साथ? कोई भी आप जो हाइपर टर्मिनल के जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो यूज कर सकते हैं आप। ओके, थैंक यू सर। हेलो सर। हाँ सर जैसे हम ये 80 कमांड्स उसमें डालते हैं सीरियल मॉनिटर में, वो वर्क कर जाता है वाईफाई मॉड्यूल। हाँ, तो ऐसे ही हम इस मॉड्यूल को सीरियल का मॉनिटर के थ्रू 80 कमांड्स नहीं डाल सकते? डाल सकते हैं ना आप कोडिंग में आपके आपको जो भी कोड किया है आपने, उससे आप डाल सकते हो 80 कमांड्स को यूज करके। तो उसके लिए कैसे करना पड़ेगा सर? अगर मैं ये वाला ब्लूटूथ मॉड्यूल ले रहा हूँ हाँ 8024, तो इसके लिए कैसे एक्सेस करूंगा? जस्ट अ मिनट, मैं वही आपको दिखाना चाह रहा था। देखिए अभी एक कोड मैं इसमें डंप करता हूँ ऑर्डिनो में। Aditya is online. Yes, sir. I am also here. You have that code? Yes, sir. I also have that code. आपके पास है कोड? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो क्या दिखा सकते हैं? अच्छा, मैं शेयर करूँ? 1 मिनट सर, रुकिए। हाँ हाँ।
ब्लूटूथ वाला सर? हाँ, ब्लूटूथ या वाईफाई जो भी AT कमांड से है सर ब्लूटूथ वाला, ब्लूटूथ वाला, यस ब्लूटूथ वाला, ओके। So basically you all have seen how this code work ना? So I will just explain कि मतलब basic AT command से आप कैसे इसको सर I think आपका माइक चालू आदित्य सर। हाँ, या Okay. Okay. So I think my screen is visible to everyone. So here in this code, what we do is that there is this serial protocol which we understand earlier today. हमने ये सीरियल प्रोटोकॉल के बारे में पहले अंडरस्टैंड किया था। माइक्रो कंट्रोलर के अंदर खास बात ये होती है कि आप मल्टीपल सीरियल्स पे काम कर सकते हैं, बट Arduino Uno doesn't have multiple serial. Arduino Uno के पास मल्टीपल सीरियल्स नहीं है। तो हम एक काम कर सकते हैं कि हम एक सॉफ्टवेयर सीरियल नाम की एक लाइब्रेरी होती है जिससे हम किसी भी पिन को एज ए सीरियल पिन एक्ट करा सकते हैं। So we use the software serial library which can make any of this pin as serial pins. So here I have suggested that I will use 8 Arduino Uno 8 pin and Arduino Uno 9 pin as a serial pin using software serial library. So I made a software serial using pin number 8 and 9. Okay, then I have also used a pin number 13 to switch relay which is available on board. As you have seen, आप लोगों ने देखा होगा बोर्ड के ऊपर एक रिले बोर्ड्स भी अवेलेबल है। तो वो रिले के थ्रू आप इस पिन नंबर 13 के थ्रू उस रिले को कंट्रोल कर सकते हैं। तो कोड इज वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। हम सबसे पहले वॉइड सेटअप पे आते हैं। दोनों सीरियल को 9600 बॉड रेट पे इनिशियलाइज करते हैं। अब हम इस बार 2 सीरियल यूज करने वाले हैं, बट व्हाई 2? वी आर व्हाई यूजिंग 2 सीरियल्स? बिकॉज वन इज यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन ब्लूटूथ एंड वन इज यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन विद आवर पीसी। तो हम जो नॉर्मल सीरियल, जो यूएसबी वाला सीरियल है, नॉर्मल सीरियल डॉट बिगिन, वो हम कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए बात करेंगे ताकि हम सीरियल मॉनिटर पे देख सकें। और सेकंड माई सीरियल डॉट बिगिन जो है वो हम यूज करेंगे ब्लूटूथ के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए। सो ब्लूटूथ इज ऑल्सो वर्किंग ऑन 9600 baud rate as well as our system is also working on 9600 baud rate. So both the system have same baud rates. Then what we do is that ये while serial एक exclamatory mark के साथ ये इनिशियलाइज करता है कि जब तक कोई सीरियल मॉनिटर ओपन ना करे ये कोड यहीं पर ही अटका रहे। ये while लूप इसको ब्लॉक करके रखेगा, इसके नीचे का चीज फॉलो नहीं होने देगा। कब तक? जब तक हम सीरियल मॉनिटर यहाँ पे जाके जैसे मैन्युअली ओपन करते थे वैसे ओपन ना करें। ओके, सो वंस सीरियल मॉनिटर आपने ओपन किया तो आप सबसे पहले डिफाइन करते हैं कि जो मेरी रिले वाली पिन है, द रिले पिन इज एन आउटपुट डिवाइस बिकॉज वी हैव टू कंट्रोल फ्रॉम रिले पिन द रिले। So that is why relay is our output device. Then हम हमारे सिस्टम पे प्रिंट करते हैं एनविस टेक्नोलॉजी to show that कि हमारा बोर्ड सही सिस्टम से कनेक्टेड है और वो सही वर्क कर रहा है कि नहीं। Now Envis is a daughter company of Scientech Technologies, so both Envis Technology and Scientech Technologies are nearly same. So we also work with Envis Technology too. Then digital write and also this kit that आदित्य सर showed, अभी जो आदित्य सर ने किट शो करी है ये Envis के थ्रू ही आपको अवेलेबल हो पाएगी। And so okay next then we have digital write function. So in write function we set relay as low. Low means we will keep the relay off. If we set it high, the relay will be switched on. Then again in my serial I have printed hello world to send Bluetooth device. If any Bluetooth device is connected to the hardware, then the Bluetooth device will work. Aditya sir, do you have any serial Bluetooth application installed on your phone? Hello, Aditya sir, are you there? Oh, yes. आपके फोन पे इंस्टॉल है सर कोई ब्लूटूथ ऐप? हाँ, ये टर्मिनल नाम से ओके ठीक है सर, चलेगा, ठीक है और ठीक है सर, वर्क करेगा, कोई प्रॉब्लम। ओके हाँ। सो वॉइड लूप के अंदर हम क्या करते हैं, जैसे हमने लास्ट टाइम सीरियल डॉट अवेलेबल चेक किया था, इस बार हम माई सीरियल डॉट अवेलेबल चेक करते हैं। तो बेसिकली माई सीरियल इस कोड में हम ये करेंगे कि हमारे फोन को हम ब्लूटूथ सेंसर से कनेक्ट करेंगे। वी विल कनेक्ट आवर फोन यूजिंग ब्लूटूथ मॉड्यूल and we will send some data to the Bluetooth module from our mobile phones. And if the data we sent is capital Y, then the relay will switch on. And if the data is capital N, then the relay will switch off over Bluetooth.
So when Aditya sir will send capital Y using a terminal app on mobile phone, which is also available with this code, with this hardware. So whenever you will install that software and you will send Y, that relay will switch on, and if you send low, the relay will switch off. So this is just a simple code to explain how Bluetooth communication work. Aditya sir, you can take it from here and you can show the practical application. Yeah. So for that, I have to connect my Bluetooth module. There is just a minute. I'll connect one, this to TX, this one, and two RX. And for relay, you have to connect number 6, from 6 to the input. Okay. So अब मैं यहाँ पर एक कोड डंप करता हूँ. आदित्य सर आपकी स्क्रीन शेयर नहीं है. ओके. Now code is uploaded. Now I'm going to transfer the data to this Bluetooth module. So just I'm selecting the NVIS, so which I have given the name of this Bluetooth module. Y type किया है और send किया है. So might be you can see on my screen. आप screen पे देख रहे होंगे यहाँ पर Y आया है और एक ये relay operate हुआ है. Are you able to see this experiment? Yes, sir. Yes, sir. Now I will type N and relay gets off. So once again, can you show? Yes, Y. It's on. Relay on हो रहा है. Yes, LED. This indications. And on same hyper terminal पे भी आपको Y and N आपको receive होना है. So इस प्रकार से हम experiments कर सकते हैं इसमें. So I think it's clear.
Yes, any doubt? Sir, I have taken 1 in place of Y to perform Yeah. this practical, and 0 Huh? for in place of N. Then it practical is working. Yes, yes, it will work. Yeah. Instead of Y, you can take any character or any character. number, Yeah. so it will work. हेलो सर। Yes. सर ये तो क्लियर हो गया है सर। जैसे जैसे मैंने आपसे पहले पूछा था कि सर जैसे हम ESP8266 वाईफाई मॉड्यूल को हम जैसे 80 कमांड्स हम डाल करके सीरियल मॉनिटर में डाल करके हम उसको कोड कर सकते हैं, क्या हम इस वाले ब्लूटूथ मॉड्यूल को कर सकते हैं क्या? जैसे मैंने पहले क्वेश्चन पूछा था आपसे, तो मेरा क्वेश्चन यही है दोबारा। आप ये, हाँ, यस सर। आप ये चाहते हो ना कि 80 कमांड्स के थ्रू आपका जो वाईफाई मॉड्यूल जो है या फिर ब्लूटूथ मॉड्यूल है वो रन करे कोडिंग के थ्रू? यस सर। सर मैं क्या बोल रहा था सर, जैसे हम ESP8266 में सीधा आर्डिनो के सीरियल मॉनिटर में हम जाकर के 80 कमांड टाइप करते हैं और सीधा वहां से हमारा ESP8266 डेटा क्लाउड पर सेंड करने लग जाता है या फिर वर्क करने लग जाता है। हाँ। ऐसे ही मैं कह रहा हूँ कि हम ब्लूटूथ के थ्रू हम सीरियल मॉनिटर में 80 कमांड सेंड कर करके हम क्या रिले ऑन करा सकते हैं? हाँ, देखिए अभी मैंने ये जो हाइपर टर्मिनल लिया है ना, तो इसको मैं डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ। ये डिस्कनेक्ट किया मैंने। ये फोन, आई थिंक स्क्रीन शेयर है मेरी स्क्रीन। हाँ सर। यस सर। यस। हाँ, शेयर है। ये फोन यदि मैंने यहाँ पर ये डिस्कनेक्ट पे क्लिक किया तो मतलब अभी जो मेरा ब्लूटूथ जो अभी सिस्टम से कनेक्टेड है वो डिस्कनेक्ट हो गया है। इफ वंस अगेन आई विल क्लिक ऑन दिस फोन सो इट विल कनेक्ट। तो अभी मैं इसको क्लोज करता हूँ, ओके, इस टर्मिनल को, और ऑर्डिनो पे ओपन करता हूँ। ठीक है, अब कोई भी ऑर्डिनो मैंने ओपन किया है। अब यहाँ से मुझे कनेक्शंस मुझे इस हिसाब से चेंज करना होगा। ये जो TX एंड RX पिन मुझे ऑर्डिनो से हटा के मैं इस पिन पे कनेक्ट कर रहा हूँ। ओके, ये कनेक्शंस हो गए मेरे। अब यहाँ पर मैं एक जो कॉम पोर्ट है वो किस पे कनेक्ट करना है वो मैं सिलेक्ट करना हूँ। और जैसे मैंने पहले बताया था आपको कि इट्स कनेक्टेड ऑन COM4, so I will select COM4 and I will select the serial monitor. So let me check. See here, अब 80 plus AB space CONFIG एंटर। तो जो चीज मैं वहाँ हाइपर टर्मिनल पे कर रहा था सेम चीज मैं यहाँ पर भी वही रिपीट कर रहा हूँ। द सेम वे यू कैन ऑपरेट द रिले GPIO जो हमने कमांड्स रन की थी 80 प्लस AB सॉरी plus AB space CONFIG 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 GPIO right, okay, GPIO right space 3,1. Okay, I think before that I have to configure it as an output. So why? Because I have restarted it. मैंने एक बार प्लग निकाल लिया था ना इसमें, इसलिए वो रिस्टार्ट हो गया है। So 80 plus AB space command is just a minute, once again I'll refer this one. GPIO config, okay, GPIO config 80 plus AB GPIO CONFIG space
3, 0. So okay, it has been, configuration has been done. So now I can write over here AT plus AB space, then GPIO write space 3, 1. So I think आप देख रहे होंगे शायद ये रिले ऑन हो गया है. The same way I can write over here AT plus AB space GPIO write space 3, 0. रिले ऑफ हो गया. सो इस प्रकार से भी आप एक्सपेरिमेंट इसमें कर सकते हैं. आई थिंक क्लियर है. यस सर, यस सर. मैंने, मुझे लगा था कि ब्लूटूथ मॉड्यूल जो आपका मॉडल नंबर दूसरा है, तो क्या पता वो ऐसे मतलब इससे इंटरफेस में दिक्कत करे कुछ. नहीं हो जाता है वैसे. ओके ओके ओके. The same way you can perform the experiments on Wi-Fi. Yes sir, yes sir, yes sir. So और किसी को कुछ डाउट है? हेलो सर. हाँ सर, मोबाइल फोन से कैसे ऑपरेट किया था वो एक बार बताएंगे आप? अच्छा ठीक है. मोबाइल फोन से ऑपरेट करने के लिए हमने क्या किया था कि इस ब्लूटूथ को इस ऑर्डिनो से इंटरफेस किया था विद द हेल्प ऑफ दिस FRC केबल. ये हमने FRC केबल से इसको कनेक्ट किया है. वंस अगेन आई विल शो यू. तो मैं कनेक्शन, अभी ये जो मॉड्यूल मेरा हो रहा था इंडिविजुअली वर्क हो रहा था, ठीक है. ब्लूटूथ इसमें ऑर्डिनो के साथ में इसमें कोई कनेक्शंस नहीं थे. नाउ आई हैव टू कनेक्ट दिस मॉड्यूल टू दिस ऑर्डिनो बोर्ड. सो आई विल टेक आउट this thing. I will disconnect this cable. Okay. Then as per my connection, hardware connection, आपको ये पैच कॉर्ड्स के थ्रू कनेक्शंस करना होगा. And this is goes to input. Okay. अभी मैंने कॉम पोर्ट चेंज किया था, तो मुझे यहाँ पर कॉम पोर्ट चेंज करना होगा. टूल्स, पोर्ट्स, कॉम 6. Yeah. So can you closer to this? Okay. अब ये जो मेरे डिवाइस नेम है एनविस है ना, तो एनविस मैंने सेलेक्ट किया. अब ये ब्लूटूथ टर्मिनल है. ब्लूटूथ टर्मिनल एक ऐप है जो कि मैंने अभी स्टार्टिंग में बताई थी. वो ऐप से मैं यहाँ पर कैपिटल Y सेंड कर रहा हूँ, ठीक है. और ये सेंड किया, ये रिले ऑन हो गया है. मैम ने अभी शायद किसी ने पूछा था 0 और 1 कर सकते हैं क्या, तो मैं यहाँ पर एक कोड चेंज करता हूँ. No, sir, I'm not asking. I'm saying I did this in my practical. Now it is working. Okay, right. Yes. So ये मैंने Y यहाँ पर प्रेस किया, so relay will on and the same way you can see over here कि यहाँ पर टर्मिनल पे भी आपको डेटा रिसीव हो रहा है. So capital N, here I can write capital N and send. See here, जैसे मैंने N send किया, here you will receive the N and relay will get off. Again capital Y
send relay on. Again capital N, relay off. So like this you can perform the experiments. बहुत सारे ऐसे experiments है. You can use the dongle as well. Instead of this mobile, यदि आपने Bluetooth dongle यदि use कर रहे हैं आप, so Bluetooth dongle आपने आपके लैपटॉप में या आपके सिस्टम पे कनेक्ट किया है और उसको कॉन्फ़िगर आपको करना होगा. जैसे अभी हमने मोबाइल के साथ में इस ब्लूटूथ को कॉन्फ़िगर किया है, पेयरिंग की है. द सेम वे यू कैन pair it with your system, and from that system you can transfer the data wirelessly to this module and you can perform the experiments. I think clear hai? Yes sir, clear है. Yes. Thank you sir. Yeah. Any more question? जी हाँ सर, ये सर्किट का यूज करके हम रिमोटली कोई पंप को ऑपरेट कर सकते हैं ना, रिले को 230 वोल्ट दे के कॉन्टेक्ट लेके रिमोटली पंप ऑपरेट कर सकते हैं ना. या जैसे हम इसीलिए हमने यहाँ रिले दिया हुआ है और यहाँ कनेक्शंस दिए हुए हैं. तो आप इसमें क्या कर सकते हो कि कोई भी एसी डिवाइस यदि होगा आपका तो वो आप यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हो, और आपका जो बल्ब है या जो भी है मोटर वगैरह जो भी आपको एसी डिवाइस ऑन ऑफ करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो रिमोटली. ठीक है. बशर्ते ये है कि आपकी जो रेंज जो है एक्चुअली ब्लूटूथ की कम रहती है, तो वो आपके रेंज में रहना चाहिए. हाँ, यहाँ पे मतलब यहाँ पे अभी ब्लूटूथ जो यूज हुआ है उस जगह पे हम जीएसएम भी यूज कर सकते हैं, ताकि आई कैन रिमोटली, मैं जैसे कि मैं कहीं ऑफिस में हूँ वहां से भी कर सकता हूँ. बिल्कुल बिल्कुल. लेकिन अभी और एक चीज मेरे को मतलब पता नहीं हो रही है, जो हाइपर टर्मिनल जो मोबाइल में जो हम इंस्टॉल कर रहे हैं उसको किसी भी ऐप में इंटीग्रेट किया जा सकता है क्या? कोई भी ऐप बना के उसमें? ये जो आपको जो मैंने जो दिखाया है ना, ये ऐप ही है. ये जो है ना, ये पता नहीं आप शायद देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं मेरे इसमें. तो ये जो यहाँ पर जो सिंबल दिख रहा है ये ऐप ही है. ये ठीक है. लेकिन जैसे कि अपना खुद का एक ऐप बना के उसको भी इंटीग्रेट किया जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं आप. बिल्कुल. ठीक है. थैंक यू. I think any question? So we shall stop here.